हेलो गाइस। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एफपीएनए की मास्टर क्लास चाहिए। तो सर एफपीएनए की मास्टर क्लास आ चुकी है एंड हियर वी आर प्रेजेंटिंग टू यू अभिनव सर एंड गौरव सर हु आर एक्सपर्ट्स इन द डोमेन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। एफपीएनए की प्रोफाइल में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कैसे टॉप फॉर्म्स टॉप कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। Abhinav sir and Gaurav sir will guide you in this particular course. So Abhinav sir and Gaurav sir both are having more than 8 years of experience. They have worked in the big fours, in the top industries, and also they are into their own practice, specializing in the domain of FP&A. गाइज, आपको इतनी करियर क्लैरिटी मिलने वाली है एफपीएनए की प्रोफाइल के बारे में, और अगर आप फाइनेंस में अपना करियर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स इज अ मस्ट डू। जरूर से मेरे को फीडबैक भी बताइएगा, और अपने जितने भी आपके डाउट्स है आप डिस्कशन फोरम में लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। गौरव सर एंड अभिनव सर आर देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? सो आई हैंड ओवर द माइक टू बोथ ऑफ यू गाइज। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग अप दीज सेशंस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। आज पता लगेगा सबको कि भाई फाइनेंस की प्रोफाइल में काम कैसे होता है। अभी तक फाइनेंस का मतलब सिर्फ एक्सेल समझ आता है सबको। अब वो डीप डाइव करेंगे कि भाई ऑडिट से आगे की भी दुनिया है और फाइनेंस की प्रोफाइल में हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Archit sir, for the beautiful introduction. And I am really excited, along with my friend Gaurav. We will be more than happy to walk you through the entire FP&A master classes. आपकी सर जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है, ट्रस्ट मी, आपको FP&A के बारे में इतना सब पता चलने वाला है। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, FP&A के डिलीवरेबल्स कैसे होते हैं, इंडस्ट्री वाइड इसकी क्या रेलिवेंस है, व्हाई इट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन अभी करेंटली। अगर आप देखोगे मार्केट में क्यों इतना लोग FP&A की बात कर रहे हैं, क्यों इतनी ऑटोमेशंस की बात कर रहे हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से FP&A ही हमारा हर चीज का जवाब है कहीं ना कहीं। इट्स अ पजल जो हमें इवेंचुअली FP&A की तरफ लेके जाएगा। So just before going through the course details, I will briefly introduce myself. My name is Abhinav. I come with 8 years of experience, and as Archit told, we have started our own practice since last 2 years, catering to FP&A management consultancy and automation. And along with me, I have my co-founder Gaurav. Gaurav, आपको कुछ बोलना है? Yeah. Thank you, Ajit sir, for such a wonderful introduction, and Abhinav, you too also. So, as Abhinav mentioned, that it has been also been more than 8 years for me in FP&A domain. I've been part of organizations like EY, Vedanta, Kotak Mahindra Bank in the past, and since last 2 years, as Abhinav mentioned, we have started our own practice, and we are right now doing like work in the field of FP&A and automation. And गाइस आई मस्ट टेल यू, जैसे अर्जित सर ने भी आपने देखा होगा भी कितनी हाइप बना के गए एफपीएनडे फील्ड के लिए। सो बेसिकली आवर पर्पस थ्रू दीज मास्टर क्लासेस इज जस्ट टू वॉक यू गाइस थ्रू की व्हाट दिस इज, एंड इतनी हाइप या जो इतनी हवा चलती है मार्केट में एफपीएनडे फील्ड को लेके, ये एक इट इज कंसिडर्ड एज द क्रीम इन द मार्केट। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज लाइक मोस्ट sought after profile in finance field these days? So basically, our purpose, like I and Abhinav, through like this series of master classes that will follow this particular class, is that only where we'll try to give you an idea of the entire FP&A journey. What are the different activities? What are the skill sets? What is this field about? And all these small things. So we'll be covering in a series of the master classes which will follow. So yeah, that's One thing I just want to tell that the sessions will be conducted jointly by both of us. There will be few sessions जिसमें गौरव आपको concept समझाएंगे. There will be few sessions that will be taken by me. So आप हम दोनों की शक्ल आपको frequently दिखेगी. But डरना मत. We will try to provide you best perspectives across different industries, and that is why we are coming jointly, because we want to tell you different perspective, क्योंकि मेरी और गौरव की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपर्टीज है, एंड वी फील कि वो सारा पर्सपेक्टिव हम इस ट्रेनिंग के थ्रू बताएं। तो आज का सेशन 1 विल बी टेकन बाय गौरव सर। मैं आपको आगे के सेशंस में मिलूंगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स, हैंड इट ओवर टू गौरव मलिक। एंड गाइस गाइस गाइस, एक चीज और, जैसे अभिनव सर ने बोला, राइट, यू आर गेटिंग एक कोर्स में 16 साल का एक्सपीरियंस, 8 ईयर एंड 8 ईयर। तो एक कोर्स पे डबल फायदा होने वाला है आपका।
एंड बिल्कुल आप एक एक चीज हैंड्स ऑन करने वाले हो, मल्टीपल एक्सेल शीट्स आपके साथ शेयर होंगी ऑटोमेशन रिलेटेड, और पूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बाय बोथ अभिनव सर एंड गौरव सर. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कोर्स एंड टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ द 16-year experience which you are going to get. Thank you very much. थैंक यू अर्चित सर. आई वुड वांट टू ऐड जस्ट वन मोर थिंग, जैसे अभिनव भी बोल रहा था. सो इनफैक्ट बोनस ये भी है, बीच बीच में अर्चित सर भी आते रहेंगे इस क्लास में. एंड विल ऑल्सो छुपन छुपाई चलती रहेगी हम लोग की. कभी आपको किसी क्लास में अभिनव सर मिलेंगे, कभी अर्चित सर, कभी मैं. सो आई थिंक इट वुड बी लॉट ऑफ फन. एंड जैसे जिस फन नोट पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हो और इतनी एनर्जी के साथ, आई होप दैट थ्रू आउट द मास्टर क्लास ये एनर्जी हम लोग सस्टेन करेंगे. एंड विद दिस सेम एंथुजियाज्म विल कंप्लीट द एंटायर एफपीएनए मास्टर क्लास. सो गाइस, अभी के लिए अर्चित सर और अभिनव सर को थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय करते हैं. And let's get straight to the first session of FP&A master class. So हम लोग अभी थोड़ा सा अब समझते हैं कि FP&A है क्या, क्यों इसकी इतनी हाइप है, इसकी नीड क्या है, हमें करने की भी जरूरत है नहीं है. बिकॉज क्या है कि सी मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, बट पॉइंट इज वेदर डू यू वांट टू डू इट और नो. सो सबसे पहले, सिंस ये टर्म के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो हम सबसे पहले आई वुड वांट लाइक जस्ट गिव अ वेरी क्विक ब्रीफ कि एफपीएनए होता क्या है. उसके बाद फिर आई विल टेल यू कि ये करना क्यों चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मैंने क्यों किया. एंड देन मे बी यू गाइस कैन आल्सो रिलेट टू योर एग्जांपल्स. सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देयर आर these are three alphabets: F, P and A. So F stands for financial, P stands for planning, and A stands for analysis. So this is the full form of the term, which is financial planning and analysis. अब सर ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गई, हमें अभी भी कुछ समझ नहीं आया ये है क्या. तो सर जैसे आप अब आगे पढ़ेंगे, सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटली प्लान, फोरकास्ट एंड बजट. सो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का टर्म है वो यहाँ पे कवर हो गया. एंड गोज बियॉन्ड द रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड इंस्टेड इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with other financial and operational data. यहाँ पे आप देखेंगे सर एनालिसिस की बात होगी, जो कि ये रही. और फाइनेंशियल तो है, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये फाइनेंशियल एनालिसिस की बात हो रही है. तो सर, और अगर आप सेकंड पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये भी लिखा है गोज बियॉन्ड द रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये गोज बियॉन्ड द रिकॉर्ड कीपिंग काफी की टर्म है, आपको इसका ध्यान देना है सर. तो सर जो इसको अब आप इस डेफिनेशन या जो इसका स्टैंडर्ड एक्रोनिम है, जो कि इंडस्ट्री वाइड हर जगह यही यूज करते हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू विल गूगल, दैट इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी और द फर्स्ट डेफिनेशन और द फर्स्ट फुल लाइक नॉन एब्रिवेटेड फॉर्म यही आती है. इनफैक्ट आप लोग को भी शायद इसी डेफिनेशन का आइडिया होगा. तो फर्स्ट वाला पोर्शन तो काफी सिंपल है, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग. अब क्या है कि कईयों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि ये तीनों टर्म सेम है, डिफरेंट है, या अलग अलग है, इनमें कुछ डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट प्लान या बजट तो आई थिंक सबको आइडिया है. व्हाट एवर यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, एज एन इफ आई एम wanting to target कि मेरा टारगेट इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या रहने वाला है इन कंटेक्स्ट टू माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो दैट इज एफपी, यहाँ पे प्लानिंग हो गया आपका. देन सेकंड इज ए, एनालिसिस. यहाँ पे अब आपको जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक तो होता है सिर्फ नॉर्मल नंबर्स हो गए, अब उसमें आपका जीपी मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वित्ता मार्जिन क्या है, या आपकी जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो है. इसके अलावा देयर आर n number of different analysis that you can actually perform on your financial data, and apart from it आप अपने ऑपरेशनल डेटा के साथ भी काफी चीजें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम जैसे किसी कंपनी का देखते हैं कि इनका ज्योग्राफी स्प्लिट क्या है, इनका प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट क्या है. तो ये सब जो है, ये सब ऑपरेशनल नंबर के एनालिसिस हो गया. इस कंपनी का मार्केट साइज क्या है, what is the total addressable market for a particular company or for a product or for a particular product. So ये सब जो एनालिसिस होते हैं, this is covered in A part.
एंड इसमें जो मैंने आपको बोला था एक चीज का आप ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे ये गोज बियॉन्ड द रिकॉर्ड कीपिंग बात लिखी हुई है। सो इसका क्या मतलब है, मैंने इसको इतना एम्फेसाइज क्यों किया? तो सर आप ये देखिए कि जो आपका रिकॉर्ड कीपिंग है दैट इज एन हिस्टोरिकल बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी एक्चुअली। और हम एफपीएनए में फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, जो जैसे सबसे पहली जो टर्म है प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, आप बैकवर्ड की तो कभी कर नहीं सकते। एंड सिमिलरली एनालिसिस भी जो आप करते हैं तो आप उसी, ये आपके जो एनालिसिस है डिफरेंट डिफरेंट, ये आप फॉरवर्ड लुकिंग भी कर सकते हैं एंड बैकवर्ड डेटा पे भी आप करेंगे। एंड बेस्ड अपॉन व्हाट यू नो सी द ट्रेंड फ्रॉम द एनालिसिस दैट यू हैव परफॉर्म्ड ऑन द एक्चुअल डेटा, आप इस बेसिस पे अपने फ्यूचर वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे टू द मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट। So this essentially is, what FP&A is, at least how it is, defined. And यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है दिस इज एफपी में आपका ये आ गया, जो हम बोल रहे थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आपका जो ये रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग है, ये आपका ए पार्ट हो गया। सो दिस इज FP&A। प्लानिंग बजटिंग में क्या आपके बजट्स होते हैं, इसको एओपी भी बोलते हैं, इसको हम फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बोलते हैं या एलआरपी भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज प्लान हो गया एलआरपी या एलटीपी। देन आपका फोरकास्टिंग में हो गया रोलिंग फोरकास्ट होता है, एक आपका ट्रेंड एनालिटिक्स होता है, एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस में देयर आर एनालिसिस लाइक वेरिएंस एनालिसिस की जो आपके एक्चुअल थे और आपके बजट है उसमें क्या डिफरेंस है। और ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या कॉस्टिंग में भी हमने वेरिएंस एनालिसिस बीकॉम सीए में भी जनरली पढ़ा होता है। देन इसके अलावा व्हाट आर केपीआईज इज योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। देन आपके डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं, स्कोर कार्ड क्या होते हैं। देन देयर आर सम डिफरेंट एनालिसिस लाइक व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जो आपने अगेन सुनी होगी बट शायद आइडिया नहीं होगी व्हाट डू दे मीन। सो ओवर दिस एंटायर FP&A मास्टर सीरीज, मास्टर क्लास, we'll try to cover all these things in detail, जहाँ पे आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पाए कि ये है क्या एंड व्हाट डू दे मीन। सो सर ये तो थी स्टैंडर्ड बुक डेफिनेशन या आपको जो जनरल नॉर्मल मार्केट में मिलेगी। नाउ कमिंग टू मी हाउ आई एक्चुअली सी इट। तो सर इफ यू आस्क मी, तो आई सी I generally define FP&A as, let me tell you my definition. For F stands for, as per me, forecasting। इसी के साथ प्लानिंग एंड बजटिंग ऐड कर लेते हैं टर्म, क्योंकि ऑल दीज थ्री टर्म्स मीन सेम। सो ये हो गया आपका एस। देन सर पी क्या है सर? P I like to define as performance management। And reporting। Then A I like to define as additional, yeah, advanced analysis। So this is generally how I and Abhinav sir define FP&A। ये हमारी custom made definition है। So F, जैसे अभी हमने पिछली डेफिनेशन में भी वी वर टचिंग अपॉन फोरकास्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, तो यहाँ पे सेम है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कि आपने जो सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ उसका जो भी गैप है। तो हम जो अभी पिछली वाली स्लाइड पे यहाँ पे वी वर गोइंग थ्रू दिस वेरिएंस एनालिसिस। सो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज दैट ओनली। देन इफ इट कम्स व्हेन आई टॉक अबाउट रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग में आपके KPIs, OKR, डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड, ये सब आ जाता है। And analysis may it could include what if analysis, scenario sensitivity analysis। So generally these are the three pillars that I and Abhinav sir define FP&A as। So sir ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। एंड अभी आपको घबराना नहीं है,
आई नो कि कुछ ये टर्म शायद किसी के लिए काफी न्यू होगी, अभी समझ भी नहीं आएगी प्रॉपरली। तो ये जो पूरा आपका एफपीएनए मास्टर क्लास डिजाइन है वो इसी तरीके से कि जो अभी हमने ये टर्म्स, ये जो आपके 3 पिलर्स है, हम इसको इसी सीक्वेंस में एक्चुअली कवर करेंगे। सो इनफैक्ट नाउ सिंस आई एम टचिंग डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, सो लेट्स डू वन थिंग। आपको आपका करिकुलम कैसे चलने वाला है, या व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू कवर, लेट मी जस्ट राइट डाउन फॉर यू। सो यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर, या 1 2 3 4। सर आजकल ना एक नया फंक्शन भी आ गया, सीक्वेंस, जहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे अभी मैं शायद 10 तक जाना चाहता हूँ, कॉलम कुछ नहीं करना, स्टार्ट मुझे 5 से करना है, और यहीं का स्टेप मुझे रखना है 1, और ये यहाँ खत्म कर दिया मैंने। सर आप ये देख रहे हैं, मेरे को काउंटिंग करनी पड़ी, और तो मुझे यहाँ पे ये 10 स्टेप्स तक नहीं जाना, मुझे ये 6 तक ही जाना है अभी के लिए, क्योंकि आई वांट टू राइट फॉर एग्जांपल 10। तो सर एक तो ये चीज है, बिफोर आई राइट अबाउट द कोर्स एंड करिकुलम, तो आपको इस तरीके के नए नए एक्सेल के फंक्शंस आ रहे हैं, या जो एक्सेल में प्रोफिशिएंसी है, इट यू शुड बी मास्टर इट एक्सेल, अदरवाइज आप भूल जाइए कि आप एफपीएनडी में कुछ कर सकते हैं। बिकॉज एफपीएनडी इज सच अ फास्ट पेस्ड फील्ड, आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे इफ यू डू नॉट नो इवन एडवांस एक्सेल। सो वो काफी जरूरी है कि आपका एक्सेल काफी स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, सो जैसे आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कि एफपीएनडी क्या है, जहाँ पे हम काफी चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे मैं सब टॉपिक्स आगे यहीं पे लिख देता हूँ, जिसमें हो गया कि व्हाट इज एफपीएनडी। इसके इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे why एफपीएनडी, how it fits in a finance department। इसके अलावा skill sets required to become a part of FP&A team। एंड इसके बाद फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आई लाइक टू एक्सप्लेन अगेन कि एफपीएनडी क्या है, मतलब भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली ये सब जो अभी हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि एफपीएनडी को आई लाइक टू डिफाइन एज फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आपका ये फर्स्ट पिलर आने वाला है डेफिनेशन का। ये अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है, बिकॉज हम इसी सीक्वेंस पे पूरी अपनी करिकुलम कवर करेंगे। सो फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस और बजटिंग हो गया। इसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे बिकॉज ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। सो सेकंड जो थर्ड, सो आई थिंक इट विल रफली टेक 2 सेशंस आपका ये टॉपिक कवर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड रिपोर्टिंग। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी, एंड आई थिंक दिस विल आल्सो रफली टेक टू सेशंस, जहाँ पे हम आपको काफी डिटेल और काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि व्हाट दिस इज। देन आपके हो गए एडवांस एनालिसिस या एडिशनल एनालिसिस, इस पर भी रफली वी विल टेक 2 क्लासेस ऑफ योर्स। इसके बाद फिर एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर हम आपको टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपको एक लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कवर करेंगे हम इसके अंदर, एंड पोस्ट दैट व्हाट आर द एफपीएनडी टूल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी एफपीएनडी की। देन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस,
जो पूछे जा सकते हैं आप लोग से, या आप लोग को क्या क्या चीजें आनी चाहिए बेसिकली, इसके ऊपर एक सेशन रखेंगे हम लोग। एंड फाइनली हम फिर ये पूरा एंड में रिवाइज करेंगे एंड समराइज करेंगे, and that's it. So these are roughly the topics that we are planning to cover in this entire FP&A Master Series. So आज अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को टच अपॉन करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपने पिलर से स्टार्ट करते हैं, जैसे एफ से मतलब द फोरकास्ट प्लानिंग एंड बजटिंग, सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड अभी जो आपके सामने इतनी सारी टर्म्स आई थी, तो एज आई सेड यू गाइस नीड नॉट वरी, हम इनको सबको डिटेल में काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर अभी कुछ समझ नहीं आया है टर्म पे, अभी भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, सो डोंट वरी। अभी जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद आई एम 101% श्योर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। या अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आए तो यू विल एटलीस्ट गेट अ सेंस या फील कि एफपीएनए एक्चुअली होता क्या है। तो ठीक है सर, ये सब तो अब आपने चलो बता दिया, ये भी अच्छा लगा कि कितने हमारे टॉपिक्स, या आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, ऑल दैट इज गुड। पॉइंट है सर, हम इतनी मेहनत करें क्यों, आप ये अभी हमारे को ये 9-10 टॉपिक, या पता नहीं आप कितने 10-11-12 सेशंस लेने वाले हो, आप हमारा इतना दिमाग खराब करोगे, हम आपको सुने क्यों। तो सर बात ऐसी है, अगर आप फाइनेंस फील्ड चूज कर चुके हो तो आपके, एंड आज के टाइम पे अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फाइनेंस में एफपीएनए से बेटर प्रोफाइल लिटरली आपको बहुत कम मिलेगी, और इट इज नॉट एन इजी थिंग टू गेट इनटू। अब जैसे आप लोगों में से काफी बच्चे जो शायद सीए कर रहे होंगे, सोचा होगा, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे, तो आपने सुना भी होगा वहां पे एक आर्टिकलशिप टाइप कंपलसरी होती है। इनफैक्ट कॉलेजेस के बाद भी है, ड्यूरिंग कॉलेजेस आल्सो सम फाइनेंस स्टूडेंट्स दे ट्राई फॉर ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप, या वो सीए वाले आर्टिकलशिप के लिए ट्राई करते हैं। कभी आपने किसी अपने फ्रेंड को सुना है कि सर वो एफपीएनए में आर्टिकलशिप कर रहा है, या वो एफपीएनए में ट्रेनिंग कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं सुना? कुछ तो कारण होगा। बिकॉज सर जो ये स्किल है, या जो स्किल है, वो माइंडसेट चाहिए, या जो वो मतलब कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज चाहिए, और वो जो मेच्योरिटी चाहिए, वो सर इतने स्टार्टिंग लेवल या फ्रेशर लेवल के बच्चों के पास या स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। तो वन रीजन इज दैट यू डू नॉट सी मेनी एफपीएनए प्रोफेशनल्स अराउंड यू। सेकंड सर, इसमें लिटरली दिस इज द क्रीम ऑफ फाइनेंस। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी जब हम समझेंगे एफपीएनए के बारे में, तो आप सर समझिए कि जो आपके, इनफैक्ट आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग, हम आपको एक फाइनेंस, पहली बात तो यही है कि एक स्टेप बैक लेते हैं, एंड मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग में से कितने लोग समझते हैं कि एक एफपीएनए फंक्शन जो है, तो इस एक फाइनेंस फंक्शन एक्चुअली कैसे दिखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफाइल्स दैट सिट्स विद इन एन फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड उसमें एफपीएनए कहाँ आते हैं, सो विल डिस्कस दैट। तो ये एक और आपके लिए कंटेंट है जहाँ पे थ्योरेटिकली एफपीएनए के बारे में लिखा हुआ है, अभी आपको समझा भी दिया है, एंड प्रैक्टिकली व्हेन विल डिस्कस तो विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन। आप नहीं तो इसको पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। नाउ इफ आई come to this, तो सर फाइनेंस डिपार्टमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा हेड होता है, जो हेड कर रहा होता है, दैट पर्सन इज सीएफओ। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के करता धरता है, पूरी कंपनी के फाइनेंस का भार सर के कंधों पे आया होता है। इसके नीचे अब जनरली 2 बाइफरकेशंस होती है, एक हो गया आपका एफपीएनए डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंस कंट्रोलरशिप डिपार्टमेंट। फाइनेंस कंट्रोलरशिप में अकाउंटिंग, टैक्सिंग आ जाती है। एफपीएनए में ये उसके पार्ट्स या सबसेट ही होता है बिजनेस पार्टनरिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो सर ये दो में बांटा क्यों, या बांटने की जरूरत क्या है, हमने ऐसा कहीं देखा है, कहीं जगह नहीं देखा है, ऐसा क्यों है? तो सर ये देखिए, ये आप यहाँ है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। तो आप देख रहे हैं एफपीएनए पहली बात कहाँ है, फ्यूचरिस्टिक, और ये है बैकवर्ड लुकिंग।
तो सर ये बैकवर्ड लुकिंग फ्यूचरिस्टिक आप किस पर्सपेक्टिव से या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? तो सर आप ये समझिए कि जो आपकी कंट्रोलरशिप में यहाँ पे दो फंक्शंस की बात हो रही है, विच इज अकाउंटिंग एंड टैक्स। इसके अलावा ट्रेजरी भी होता है, मतलब देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे सर होते हैं बैकवर्ड लुकिंग। अब बैकवर्ड लुकिंग से सर आपका क्या मतलब है? सर आप ये समझिए कि जैसे आप एक कंपनी है, आपने आपका जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग काम क्या कर रहा है सर? आपका अकाउंटिंग आपका ये काम कर रहा है जो एक पर्टिकुलर पीरियड है। जैसे आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा और मंथ एंड हो गया, मंथ एंड में आपका अकाउंटिंग वाला बंदा कर क्या रहा है? वो डेली बैठ के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है कि जो मैंने आज एक्सपेंस करा है, जो मेरा रेवेन्यू आया है, उस सबको रिकॉर्ड कर रहा है, उसका अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। और मंथ एंड में मुझे एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है कि सर आपको इतना पैसा मिला था ड्यूरिंग द मंथ एंड आपने इतना एक्सपेंस करा। सो बेस्ड अपॉन, अगर मैंने ज्यादा पैसा स्पेंड किया है तो मेरा लॉस निकल के आएगा, और मैंने अगर कम पैसा स्पेंड करा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट बचा होगा जो कि मेरी जेब में होगा, विच आई कैन यूज एनीवेयर। सो तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज हो चुकी है, जो पास्ट में सब हो चुका है, ये सिर्फ उसका एक स्नैपशॉट मुझे प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट बेसिकली अकाउंटिंग इज। अगर बिल्कुल फंडामेंटल एक लेमन टर्म्स में जाके मैं बात करूं, सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज। एंड सिमिलरली जो आपका टैक्सेशन है, जो आपने एक्चुअल में कमाया या आपका जो लॉस हुआ, उसी के ऊपर तो टैक्स लगाया जाता है सर। गवर्नमेंट उसी पे तो टैक्स लगाती है, आपकी किसी फ्यूचर इनकम या उस पर थोड़ा टैक्स लगाती है। तो इसलिए जो ये रोल्स होते हैं, जो प्रोफाइल्स है, दीज आर ऑल बैकवर्ड लुकिंग। अब सर एफपीएनडी भी आते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक कैसे है, ये क्या है? तो सर सबसे पहले जैसे अगर हम जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है एफपीएनडी की, विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो इसमें जो सबसे पहले टर्म आ रहा है विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड जिस तरीके से मैं भी डिफाइन करता हूँ, तो एफ स्टैंड्स फॉर फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग। अरे सर, फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग आप फ्यूचर पीरियड की ही तो करोगे, पिछले पीरियड की थोड़ा ना करते हो। ना ही आज की हो सकती है, बिकॉज आज तो मैं खड़ा हूँ ना, मुझे पता है आज मेरी क्या सिचुएशन है, तो मैं आज के लिए क्या प्लान करूंगा। मैं तो जो आगे आने वाला मूवमेंट है उसके लिए प्लान करूंगा ना सर। तो इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू एडिशन आएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा सपना है कि मुझे सीए में रैंक लानी है, मुझे 90% लानी है, तो सर उसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा ना। अब आप ये सोचिए कि ये कितनी मेरे लिए वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है। क्योंकि अगर अब मैंने एक टारगेट सोचा कि विच इज आई वांट टू स्कोर 90% या आई वांट टू स्कोर अ रैंक इन सीए फाइनल्स, तो मैं उसके लिए प्लान करूंगा। अब जो मैं प्लान करूंगा, अगर मेरा प्लान मैं अच्छे से बना लेता हूँ और उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, तो सर होपफुली मेरी रैंक या जो मेरा टारगेट था मैं उसको अचीव कर लूंगा। तो अगर मैंने उसे अचीव करा, तो बेसिकली जो इस एक्टिविटी है, इस एक्सरसाइज से मेरा आउटकम आ रहा है, वो देखिए ना सर आपके लिए कितना वैल्यू एडिशन है। बिकॉज देन इट मींस दैट आई हैव बीन एबल टू फुलफिल माय टारगेट और अचीव माय टारगेट। सो हेंस this is very crucial and this is very value addition, and hence organizations also reward professionals who are part of such teams, yeah, who have that mindset where they can actually set plans or help you achieve your targets. So that is what basically an FP&A department does. They always talk about future, they never talk about कि past में क्या हुआ, and past हुआ वो उसके कारण आपको बताएंगे। कि अगर आपने मान लो सोचा था कि आप 90% लाने वाले हो, बट एक्चुअल में आपके 70% आए, तो सर जी वो सीबीआई ईडी से भी खतरनाक आपकी इंक्वायरी करेंगे। वो आके पूरे आप मतलब जिस भी डिपार्टमेंट ने टारगेट अपना मिस करा, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वालों ने टारगेट दिया कि हम सर इस बारी 100 रुपए की सेल करेंगे, बट उन्होंने सिर्फ 50 रुपए की सेल करी। अरे सर वो आपकी धज्जे उड़ा रहे हैं। एफपीएनए डिपार्टमेंट वाली टीम ना वो पूछी कि भैया ये क्या कर रहा है, आपने 100 रुपए बोल के 50 रुपए कमा के लाए हो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम तो इस बेसिस पे पता नहीं क्या क्या प्लान बना के बैठ चुके थे कंपनी के लिए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन है? सीएफओ। based upon the numbers or the confidence that revenue department gave to the FP&A team or to the CFO basically, कि हम 100 की सेल करेंगे, क्या पता उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कमिट कर दिए होंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यार 100 रुपए आने वाला है, क्या उस बेसिस पे उन्होंने अपना कुछ खर्चा कमिट कर दिया, बट एक्चुअल में आया 50 रुपए। अब दिक्कत हो जाएगी कंपनी को। तो सर जो एफपीएनए टीम है पूरी ऐसे ईडी से भी जल्दी छानबीन करती है कि भैया क्या हुआ, और एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर लाती है। और इस चक्कर में आप ये सोचिए कि जो आप लोग के टारगेट सेट हो रहे हो कितने रियलिस्टिक, और इस तरीके से अगर हर किसी में वो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि वॉट एवर आई हैव गिवन
to my team, to my CFO, I have to achieve it. So आप ये सोचते हैं कि जो आपके टारगेट्स है वो रेयरली कभी मिस होंगे. तो that is essentially, what a FP&A person or what a FP&A team actually brings to the organization, and hence FP&A teams are very very critical for success of any organization. इनफैक्ट सर सबसे ज्यादा जो CFOs बनते हैं वो एफपीएनडी डिपार्टमेंट से एलिवेट होके CFO की पोजीशन पे जाते हैं. और I can say from my personal experience also, like I've been part of organizations like Vedanta, Kotak Mahindra, EY, and EY में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट भी किया. तो जो उनकी एफपीएनडी टीम्स थी वो सर CFO की फेवरेट होती है. इसके लिए सर कोई कारण तो होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दिस इज द ओनली टीम विच इज एक्चुअली डूइंग वैल्यू एडिशन फॉर मी. आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ये टर्म सुने होंगे, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर. तो सर जो आपकी अकाउंटिंग है, आपकी जो टैक्सेशन टीम है, ये सर आपके लिए कॉस्ट सेंटर है. वो सिर्फ आप बैठ के उन बंदों को पैसा दे रहे हो कि यार तो हमारे को स्नैपशॉट दे दो, बट वो आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि सर जो होना था वो तो हो चुका ना. नाउ इट्स ओनली मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप किसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो दैट इज व्हाट दैट इज हाउ एफपीएनडी डिपार्टमेंट इज डिफरेंशिएटेड. और इसलिए इसकी इतनी नीड है, क्योंकि जो आपको इस तरीके के आपके टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करे, आप उसे यार पैसा देना भी पसंद करोगे ना. और इन अ वे थ्योरेटिकली एफपीएनडी टीम इज आल्सो कॉस्ट सेंटर ओनली, बट ये प्रॉफिट सेंटर का काम इस तरीके से करती है, क्योंकि जब आप उनको टारगेट अचीव करा रहे हो, जो इस तरीके से आप उनके लिए वैल्यू ला रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो यू एसेंशियली टर्न yourself from a cost center to a profit center in practically. ठीक है सर, ये तो काफी बढ़िया बातें आपने बताई और काफी सुनकर मजा भी आ रहा है. सो सर इनफैक्ट आपको पता है अभी रिसेंटली कैन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिकल्स पब्लिश करती है, काफी रिसर्च करती है. सो दे रिसेंटली पब्लिश्ड समथिंग अबाउट CAs एंड ICAI इन पर्टिकुलर, कि हाउ like in a way standards of CAs are falling. and उन्होंने एक स्टार्टिंग फैक्ट दिया था कि जहां पे हमारी लिस्टेड कंपनीज इंडियन मार्केट्स में पहले रफली 60% ऑफ दी जो CFOs थे they were actually CAs, and बाकी सब मतलब डिफरेंट क्वालिफिकेशन, जिसमें से प्राइमरीली MBAs होते थे. now that number over last 10 to 15 years has change, and abhi roughly 40% of the CAs of the listed companies, 40% of the CFOs in the listed companies are having CA as their primary degree or the highest degree, and rest जो primarily है they are MBAs. तो सर इसका कारण क्या है? तो सर अभी जब हम एफपीएनडी डिपार्टमेंट के लिए या एफपीएनडी टीम के लिए जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, जब अभी हम उन पे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें से एक जो रिक्वायरमेंट आती है दैट इज स्टोरी टेलिंग या बिजनेस पार्टनरिंग या जो और भी डिफरेंट स्किल सेट्स है. तो आप ये लोग नोटिस करेंगे कि ये कहीं ना कहीं आजकल MBA स्कूल्स में या इस तरीके के कोर्सेज में काफी ज्यादा सिखाए जा रहे हैं, जो हमें थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया जाता, या थ्योरेटिकली इनफैक्ट हमारा ऐसा कोई टॉपिक या कोई हमारा सेशन भी नहीं है. एंड इनफैक्ट इंस्टीट्यूट भी इसे कोई प्रमोट नहीं करता. लाइक आई एम स्पेसिफिकली राइट नाउ एड्रेसिंग द CA स्टूडेंट्स. So hence you guys have to understand that if you want to be at the peak of the finance field, like if you guys have the ambition of becoming CFO for any particular company, so this is very essential skill that you need to learn apart from the other skills. ऐसा नहीं है कि बाकी skills बेकार है कुछ है, just that there is something different about FP&A and there is some additional value that it brings. Only reason being that it is futuristic, and फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक यही डिपार्टमेंट है जो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेक करने में काफी हेल्प करता है. जैसे अगर कल को हमें लोन उठाना है, कुछ भी करना है, तो ये सारी की सारी जो मॉडलिंग या प्रोजेक्शंस की रही जाती है, ये सारे जो अब आपके प्लान्स में, अगर मान लो आपको कोई लोन लेना है तो आप एक प्लान जो बना के देखोगे, आप देखोगे कि कितना मेरा इंटरेस्ट आउटले है, जो भी है, ये सारा का सारा जो आपका काम है एफपीएनडी टीम करती है. तो इस तरीके के काफी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. सो हेंस बेसिकली
CFO का right hand है, and without proper FP&A function, no company can grow properly. If you want to grow, if you want to become big, you ought to have a very good FP&A department. It's as simple as that. And trust me, I and Abhinav have fallen in love with the FP&A departments. Like literally, जैसी हमारी qualifications, हम लोग CA बने थे, हम दोनों ने FP&A teams ज्वाइन करी थी, और उसके बाद जो हम लोग लिटरली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि काफी काफी इंटरेस्टिंग काम है, काफी मजा आता है गाइस इसमें। एंड पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस मास्टर क्लास फॉर यू इज ओनली दैट कि हम लोग कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर कर सके। सो दिस वाज लाइक एक FP&A डिपार्टमेंट कैसे होता है। नाउ कमिंग टू कि स्पेसिफिकली एक FP&A टीम अब कैसे दिख सकती है, तो जैसे CFO के अंदर हमने अभी देखा था कि ये बैकवर्ड लुकिंग का हो गया, जहाँ पे कंट्रोलर हो गया आपका, फिर FP&A हेड हो गया, यहाँ पे या तो उसके नीचे डायरेक्टर हो सकते हैं, फिर देयर कुड बी मैनेजर, उसके नीचे टीम हो सकती है, जहाँ पे देयर कुड बी FP&A सीनियर कंसल्टेंट या सीनियर एनालिस्ट हो सकते हैं। तो दीज आर द टर्म्स और द जॉब टाइटल्स दैट यू विल फाइंड अंडर FP&A रोल्स जो आपको इस साइड पे दिख रहे हैं। देन सर एक FP&A डिपार्टमेंट के में क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये अगर आप नोटिस करेंगे व्हेन यू विल एक्चुअली रीड इट, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है सर। रिस्क मैनेजमेंट, एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस होना चाहिए, प्रोएक्टिव बेसिस पे सर ध्यान दीजिए, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, बिकॉज ये एक फॉरवर्ड लुकिंग डिपार्टमेंट है। यू हैव टू हेल्प कंपनी एंटिसिपेट कि कल को क्या दिक्कत आ सकती है, वेयर दे माइट मिस देयर टारगेट्स, और आपको प्रोएक्टिवली उसे रेज करना है सो दैट नेसेसरी स्टेप्स पहले से ही लिया जाए। मान लो मैंने सोचा था कि मतलब वही मेरे को 90% लाने हैं, बट मुझे दिख रहा है अरे 2 महीने बाद मेरे घर में क्रिटिकल शादी है, मान लो दिवाली आने वाला है, बिकॉज ये सीए स्टूडेंट्स स्पेशली फेस किया होगा, जो लोग एक्चुअली नवंबर अटेम्प्ट देते हैं, जनरली जस्ट बिफोर द एग्जाम्स और जस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम्स मेनी टाइम्स दिवाली आ जाती है। तो सर आप उसके लिए प्रोएक्टिवली तैयार रहते हैं, आप ये नहीं करते कि आप दिवाली आई फिर उसके बाद वो शिट मेरे 3 दिन बेकार चले गए, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, और उसके बाद आप डिसाइड नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना टारगेट मिस कर देंगे। तो आप पहले से उसको अपने प्लान में कंसीडर करके चलते हो कि भैया दिवाली आने वाली है, मैं शायद 3 या 4 दिन नहीं पढ़ पाऊँ, तो मेरे को वो 3 या 4 दिन पहले कैसे कवर अप करने हैं। सो FP&A डिपार्टमेंट भी सर यही कर रहा है, वो इस तरीके के जो आपके फ्यूचर में रेड फ्लैग्स आने वाले हैं विच माइट इम्पैक्ट योर टारगेट्स, जो आप अपने प्लान में आपने सेट करा या अपने बजट में सेट करा या आपने अपने फोरकास्ट में सेट करा, उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली टर्म है प्रोएक्टिव। उसके बाद एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम सटीक, बट ये क्या है कि ओवर टाइम डेवलप होता है सर। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे ही रहा था कि आपके सेल्स हेड ने आपको 100 का टारगेट दिया बट एक्चुअल में 50 आया। सर ठीक है, पहली बार काफी बुरा है और ये एक्यूरेट तो किसी भी एंगल से नहीं है, बट सर आप जब एक बार उसके बाद उसको प्रेशर करोगे, आप उस पर अकाउंटेबिलिटी डालोगे, आप उसको क्वेश्चन करोगे भाई तूने ये कैसे नंबर बोलता है, you will make him responsible, you will name and shame him again and again। तो सर आज उसने 50% का झूठ बोला है, कल को ये वो नंबर बिल्कुल एक्यूरेट ला के छोड़ेगा, या तो वो आपको अगली बार टारगेट ही 50 का देगा, या वो इतनी मेहनत करेगा कि आपको जो टारगेट दिया है उसको वो डेफिनेटली टच करेगा। तो ओवर टाइम एक्यूरेसी आ जाती है बिकॉज ऑफ अ रोबस्ट FP&A फंक्शन। देन एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये भी काफी बड़ी चीज है, एंड इनफैक्ट जो मेरी और अभिनव सर की भी स्किल सेट है वो यही है कि हम FP&A प्लस ऑटोमेशन हमारी एक्सपर्टीज है। तो सर आपको ये समझना है कि आज के टाइम पे ऑटोमेशन या जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यू कैन नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ दैट रेस बिकॉज टेक्नोलॉजी इज रैपिडली इन्वॉल्विंग। आप सोच नहीं सकते आज आप चैट GPT या AI के थ्रू लिटरली क्या क्या नहीं कर सकते। इफ यू आस्क मी एंड अभिनव सर, हम लोग को पाइथन आता है, हम लोग को SQL आता है, हमें पावर BI आता है, हमें टैबलू आता है, सर हम पूरी कोडिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशंस तक बनाई है। सो हम हाफ इंजीनियर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड FP&A में यू लिटरली हैव टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी बिकॉज जो आपकी डेटा प्रिपरेशन है
दैट हैज टू बी वेरी प्रोएक्टिव। आप डेटा प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 4 दिन लगाएंगे अपने रिपोर्ट्स बनाने में या अपने एनालिसिस प्रेजेंट करने में। आपका बस दिमाग लिटरली ऐसा चलना चाहिए कि अच्छा ये एनालिसिस या डेटा मुझे ये बता रहा है तो इससे ये मेरा एनालिसिस निकल के आ रहा है, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट। इससे आप एक्शनेबल इंसाइट्स निकालिए, आप अपने मैनेजमेंट को हाईलाइट कीजिए और आप फिर उनको स्ट्रैटेजी मतलब वो स्ट्रैटेजी बनाने में जस्ट टू टैकल, लाइक अगर वो आपके फेवर में है तो यू डिसाइड कि आपको कैसे एक्ट अपॉन करना है, या अगर आपके वो नेगेटिव उसमें है तो आप एक स्ट्रैटेजी बनवाएंगे कि इसको हम डील कैसे करें, इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो आज के टाइम पे ये काफी क्रिटिकल चीज है। तो आप लोग सर ये मान लीजिए कि ऑटोमेशन या जो ये टूल्स की लर्निंग है आप इसको नहीं छोड़ सकते, मतलब आप इससे लेफ्ट आउट नहीं रह सकते। अगर आप करोगे तो लिटरली आई डोंट सी कि 4-5 साल बाद you will survive. Then similarly ये जो next है जैसे strong communication and collaboration, तो ये भी मैंने टच अपॉन किया कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है ये काफी अच्छा होना चाहिए। एंड इसी रीजन से काफी सारे MBAs आपको मिलेंगे FP&A डिपार्टमेंट्स में, because they are actually very good with presentations, their communication skills, so you have to be वेरी कि आपकी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। जो आपने इनसाइट्स आपको डेटा से दिख रहे हैं, यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेटिव एंड काफी क्लियर कम्युनिकेशन आपको अपनी मैनेजमेंट को करनी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट ओके व्हाट आर द क्लियर risks that you have identified and what are the areas that you have identified for improvement. Then deep business and industry understanding is very important. Active participation in strategic decision is also very important. So these are some of the things which you can also go through by yourself. जो critical या important points थे उस पे मैंने emphasize कर ही दिया। And जो bad FP&A बिल्कुल इसका opposite है। तो यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं करना है, इसको ना पढ़ना, आपको हमेशा इसी साइड रहना है और ये सब अच्छी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। देन कमिंग टू सर, आपने काफी चीजें बोली ना, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स या किस तरीके की कुछ एक्टिविटीज होती है जो आपने भी सुना होगा या देखा होगा। तो ये सर कुछ एग्जांपल्स FP&A डिलीवरेबल्स के क्या क्या होते हैं, कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं इनके। तो देयर इज मंथ एंड रिपोर्टिंग, फ्लैश रिपोर्टिंग, QBR एंड व्हाट नॉट, ये पूरा लिखा हुआ है आप सबके लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसमें से। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करते हैं या क्या चल रहा है, अभी मैं आपको कुछ इनके स्नैपशॉट्स भी दिखाऊंगा। प्लस ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ दिस मास्टर क्लास हम लोग इसमें से काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली कवर भी करेंगे, जिसमें आप ये सर सारी चीजें जो शायद आपको भी समझ में नहीं आ रही, आप अपने हाथों से सर खुद करेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो कुछ डिलीवरेबल्स के एग्जांपल। तो जो सबसे जरूरी है, जो सबसे पहला पार्ट आता है, सो हमने जब डिस्कस करा था FP&A में देयर आर 3 थिंग्स। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला है उसके लिए सर एक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग या एक MIS या मंथली FP&A डेक बनता है, जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेरिएंस एनालिसिस हो रहा है, हमने ये पढ़ा था कि परफॉर्मेंस के अंदर ये वेरिएंस एनालिसिस होता है। तो आप यहाँ अगर ध्यान देंगे कि ये आपके एक्चुअल्स है, AOP को हम बजट भी बोलते हैं, ये आपका बजट है। तो एक्चुअल वर्सेस बजट में आपका कितना वेरिएंस है, फिर आपका ये प्रीवियस ईयर का एक्चुअल है तो आपका ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन या वेरिएंस है। ये आपका QTD सेट नंबर्स के लिए, ये आपका मंथली के लिए था, और ये आपका YTD नंबर्स के लिए सेम वेरिएंस एनालिसिस हो रखा है। तो सर ये एसेंशियली आपका कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जा रही है। आपने बजट में बोला था आप इतना अचीव करोगे, बट आपने एक्चुअल में इतना अचीव करा। आपने पिछले साल इतना अचीव करा था, इस साल आपने इतना करा, तो आप तो पिछले साल से भी बुरा सर परफॉर्म कर रहे हो। तो ये वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, नथिंग एल्स। और वन मोर थिंग, well I don't know how many of you clearly understand this thing कि जो यहाँ पे ये टर्म यूज हो रही है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इसको इंटरनल, इनफैक्ट FP&A को हम लोग मैनेजमेंट रिपोर्टिंग या कई बार इंटरनल रिपोर्टिंग भी बोल देते हैं। और एक टर्म आप लोग को पता ही होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, बिकॉज जो मतलब अगर ये कोर्स ज्यादातर बच्चे जो CA देख रहे हैं वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट या स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग आप लोग इन टर्म्स से काफी बारी कम अक्रॉस किए गए आए होंगे। एंड इनफैक्ट काफी CAs को इजीली स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग ऑफर की भी जाती है एज अ प्रोफाइल। तो सर ये इंटरनल रिपोर्टिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग सर ऐसा होता है कि आप ये सोचिए पहली बात रिपोर्टिंग की जरूरत क्यों, और उसके लिए फिर हमने स्टैट्यूट्स बनाए क्यों। स्टैट्यूटरी मतलब
reporting which has to be done इन अकॉर्डिंग्स टू अ स्टैट्यूट, एंड जो यहाँ पे स्टैट्यूट है वो आपके रेलिवेंट गैप होंगे। अगर जैसे हम इंडिया में तो इंडियस की बात होगी, अगर हम यूरोप में बैठे आईएफआरएस की बात होगी, अगर हम यूएस में है तो वहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है विच वी कॉल एज एएसएस, तो उनके हिसाब से आपको अपनी बुक्स बनानी पड़ेगी। तो रेलिवेंट गैप जो भी जिस ज्योग्राफी में उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो सर आप सोचिए कि जैसे आज एक कंपनी है रिलायंस, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अब रिलायंस के बैंक में 100 रुपीज है और उनके हैंड में भी कैश में भी 100 रुपीज है। अब उनसे पूछे कोई कि सर आपका कैश कितना है, अब वो उनकी मर्जी है सर, वो बोलेंगे कि कैश से उनका मतलब है शायद आप हार्ड कैश की बात कर रहे हो और वो बोल देंगे हमारे पास 100 रुपए है। बट आप शायद पूछे थे आपके पास आज के टाइम में टोटल पैसा कितना है जिसमें आप बैंक का पैसा भी जोड़ना चाहोगे, तो कोई कोई बोल सकता है कि अरे हमारे पास 200 है, कोई बोलेगा हमारे पास 100 है। तो सर ये तो काफी दुविधा वाली बात है कि ये तो इसका मतलब हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो इसी इसी को एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए वर्ल्ड वाइड from investors point of view, so that whenever anybody is looking at a particular company, so there is a particular defined like definitions है for all these terminologies जो हम फाइनेंस में यूज करते हैं, लाइक जो पीएनएल में टर्म्स आते हैं आपके या आपके बैलेंस शीट पे टर्म्स आते हैं, इनके प्रॉपर डेफिनेशन so that कोई ऐसे वेरिड आंसर नहीं देखी, सबका आंसर सेम आना चाहिए कि भैया इनका जो कैश है वो 200 रुपए ही है। तो ये आंसर आने के लिए तो कुछ स्टैट्यूट्स डिफाइन करे गए और उस हिसाब से जब हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। बट अब जो ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है या इंटरनल रिपोर्टिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? अब जैसे स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग था रिपोर्टिंग दैट इज डन बाय एनी स्टैट्यूट यहाँ पे आपके गैप्स हो गए। अब ऐसे अगर मैं मैनेजमेंट रिपोर्ट की बात करूँ, सो दिस इज रिपोर्टिंग दैट इज डन एज पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा और मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक कंपनी के बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा, तो कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट एफपीएन इज दिस ओनली कि आपको पूरी फ्रीडम, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपकी मैनेजमेंट या आप खुद काफी क्रिएटिव हो सकते हैं अकाउंटिंग के साथ। आप लोग काफी न्यू, जैसे एबिटा जो टर्म है, एबिटा इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन एनी ऑफ द अकाउंटिंग ऐप थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अभी तो एबिटा के ऊपर भी पता नहीं ना जाने कितने सारे एडजस्टेड एबिटा माइनस दिस, पता नहीं कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज आ गई है। तो ये सब जो है आपको एक क्रिएटिविटी करने का मौका देते हैं। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कंपनीज मैनेजमेंट, एंड हर कंपनी के हिसाब से डेफिनेशन अलग हो सकती है। हो सकता है एक कंपनी के हिसाब से बिट्टा की डेफिनेशन एक्स है, एक कंपनी के हिसाब से बिट्टा की डेफिनेशन वाई है। दोनों में से कोई ना सही है ना कोई गलत है, दोनों अपनी जगह सही है। सो इसलिए एफपीएनए में नो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट सर। आप कुछ रट नहीं सकते, यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको याद करना है, आपको अरे टेंशन में रहना है, अरे यार कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ अमेंडमेंट आ जाएगी, मेरा एएस कुछ और बोल रहा है, मेरा ऑडिट स्टैंडर्ड कुछ बोल रहा है, ऑडिटर्स मेरा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे सर कोई कुछ नहीं करेगा, आपको पूरी फ्रीडम है। आपको जो आपको अकाउंटिंग या जो आपको फाइनेंस का आपका मतलब है, आप उस हिसाब से सर रिपोर्टिंग करिए, अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस करिए, आप उन्हें अपना फंडा दीजिए, आप उन्हें समझाइए कि जो मैं ये टर्म अगर कॉइन करके ला रहा हूँ, आपको मैं इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो ये मेरा आउटपुट है ये क्यों सही है या क्यों गलत है। तो दिस इज एक्चुअली ना द बेस्ट पार्ट अबाउट एफपीएनए, जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी और उसमें नहीं मिलती, एंड दैट इज इन दिस इज लिटरली समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई रियली लिटरली एंजॉय अ लॉट जो मुझे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सर। तो वन एग्जांपल ये था। सिमिलरली दिस इज अनदर एग्जांपल कि जहाँ पे ये मैनेज मतलब वेरिएंस एनालिसिस फिर और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही आ गया। Then these are some of the different other snapshots जिसमें से काफी सारी चीजें हम टेक अप करेंगे। इनफैक्ट ये डैशबोर्डिंग जो एक्टिविटी है इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी कवर करेंगे, ये काफी फन होने वाला है सर। ये जो डैशबोर्ड यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट है सर, ये आप लोग अपने हाथों से खुद बनाने वाले, काफी मजा आएगा। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग हमने डैशबोर्ड्स मतलब सोच रखे आप लोग के लिए, which we want you guys to actually replicate। तो ये सब आप करेंगे ड्यूरिंग दी कोर्स। ये सर हमने पावर में टैबलेट पे बनाए थे, तो अभी तो वी अंडरस्टैंड आप में से काफी लोगों को शायद आता भी नहीं होगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं। विल जस्ट सी एंड विल ट्राई टू रेप्लिकेट देम इन एक्सेल ओनली। पहले एक्सेल पे सर हाथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक बार एक्सेल पे हम स्ट्रॉन्ग हो गए
तो हम लोग फिर बाद में पावर BI टैबलू की भी एक सेपरेट मास्टर क्लास रख सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग इस चीज को लेकर डिस्कशन फोरम में डेफिनेटली अपने रिस्पॉन्सेज देना एंड बताना आप लोग लिटरली अगर इंटरेस्टेड हो। सो आई एंड अभिनव सर, सिंस वी आर वेरी प्रोफिशिएंट इन दीज टूल्स एज वेल, so we can plan another master class for you guys where we'll be teaching you about Power BI Tableau। तो ये कुछ और स्क्रीनशॉट्स है, ये आप सब बस ऐसे ही जस्ट टू गेट अ फील, क्योंकि आज का फर्स्ट सेशन है, ज्यादा हैवी नहीं जाना। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दीस टर्म्स क्या है, आप बस एक बारी कैन फील लीजिए कि किस तरीके के एनालिसिस या क्या क्या कर सकते हैं। ये भी एक कोहॉर्ट एनालिसिस है। ये आजकल जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड काफी कंपनी जो प्रोडक्ट्स करती है, ये के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो एग्जांपल SaaS का, जैसे नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या प्राइम, इसमें क्या है कि आप हर महीने उन्हें पैसे दे रहे हो, नहीं तो आप वो प्रोडक्ट का यूजेज करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर आपने इस महीने नेटफ्लिक्स का पैसा नहीं दिया तो आपको नेटफ्लिक्स आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ना देख सकते। तो इन कंपनीज में अगर आप गूगल करेंगे कोहॉर्ट एनालिसिस करके, काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। इसके अलावा रिटेंशन एनालिसिस, तो जो इन कंपनीज की वैल्यूएशन है या जो इनकी आज वैल्यू है, या ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोहॉर्ट एनालिसिस और रिटेंशन एनालिसिस आर वेरी की operational parameter. This is not a financial parameter, but this is an operational parameter. And sir, आप ये समझिए financial parameter होता है जो जनरली आपकी 3 financial statement से परटेन करता है, एंड आपकी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, IAS, BS एंड CFS। एंड इसके अलावा जैसे जो आपका कस्टमर रिलेटेड डेटा या प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा या काफी अदर चीजें होगी, वो आपके सब हो गया ऑपरेशनल रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोहॉर्ट एनालिसिस में होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर सेट ऑफ कस्टमर्स ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जब ये आए थे तो ये हमें 100 रुपए का धंधा दे रहे थे, आज के टाइम पे वो 100 रुपए से मान लो 200 रुपए का धंधा हो गया, कैसा हो गया। तो ये उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश होती है। रिटेंशन मतलब कि जो बंदा आए तो कितने बंदे हम रिटेन कर पा रहे हैं। सो अगेन आप इसे गूगल कर सकते हैं जब आपका मन करे, अदरवाइज अगेन ड्यूरिंग दी डिस्कशंस हम इसे आगे क्लासेस में टेक अप करने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक यूटिलाइजेशन समरी का एग्जांपल है। सो दिस इज अनदर ऑपरेशनल और पीपल प्लानिंग एंड एनालिटिक्स के अराउंड एक एग्जांपल है, जो कि यहाँ पे आपके लिए एक स्नैपशॉट चिपकाया गया है। तो these are some of the deliverables that we have to do। और हमने पिछले काफी सालों से अभिनव सर और मैं ये करते आ रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, अगर कुछ समझ नहीं आए तो डिस्कशन फोरम पे डेफिनेटली अपने डाउट्स छोड़ना, मतलब ड्रॉप इन करना, एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स ASAP। तो सर काफी आपने अभी थ्योरेटिकली काफी चीजें बता दी। आप बोल रहे थे सेशन की बिगनिंग में कि हम प्रैक्टिकली भी अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको समझेंगे। तो फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ पे हम अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए जंप इन करेंगे, जहाँ पे विल बेसिकली एक एक्टिविटी करेंगे जिसपे हम देखते हैं कि करना क्या है। सो गाइस, एज आई वाज टेलिंग कि अब क्लास के एंड में हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो सी अभिनव सर यहाँ पे आ गए आप लोग के सामने। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा था कि व्हाट FP&A इज, या कैसे जो एक डिफरेंट एक्टिविटीज आप लोगों ने देखी थी, तो अभी हम लोग उस पर ही एक डिस्कशन करेंगे सो दैट आप लोग समझ पाए कि ये होता कैसे है। तो ओवर टू यू अभिनव सर। थैंक यू गौरव जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये हम एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ केस स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से एक मेथोडोलॉजी होती है, कि किस तरीके से हम बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। तो वी विल नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, बट वी विल ओनली डू लॉजिकल थिंकिंग। एंड लॉजिकल थिंकिंग में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम और बिजनेस को समझ पाते हैं, किस तरीके से हम ड्राइवर्स के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो अभी मैं गौरव जी को दोबारा बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं गौरव जी को एक रोल असाइन करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र गौरव मलिक का नया नाम है गौरव जॉब्स, एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ जी फोन्स। तो गौरव जी आप आइए अब और अपना जी फोन दिखाइए। हेलो फ्रेंड। So now, the problem statement that we would like to solve today is, imagine Gaurav Jobs, founder of G Phones, wants to start business in India.
He is already selling his phones all across in all abroad, in US, in Europe, but he now wants to enter into Indian market, and Indian market is already cluttered. So Gaurav Jobs, not Gaurav Malik, Gaurav Jobs has reached out to me and asked me, hey Abhinav, why not you do a sales forecasting if I enter Indian markets in 2024? Like, what is the market size I am looking at? What are the competitors I am looking at? How many money can I make? So this is what we would like to achieve today on how FP India guy or FP India team will help Gaurav Jobs in these kind of answers so that he can start business. So let me show you what we would intend to do, and it is very methodological. ठीक है, तो मैं एक पहले लिख देता हूँ थोड़ा, इसको हम फन बेसिस पे लेंगे, फन एलिमेंट डालेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, उस पे देयर शुड बी जीरो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो गौरव जी, मेरे को आप पहले ये बताइए कि आपका पहला क्वेश्चन है, आप मेरे से ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ इंडिया, राइट? Yes. तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुत डिफरेंट वे से एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम मार्केट साइज ऑफ इंडिया पता लगा सकते हैं। तो फंडामेंटली, अगर आपको मार्केट साइज जानना है इंडिया का, गौरव जी, तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन कितनी है, हाँ जी। कितने लोग यूजर्स हैं मोबाइल फोन्स के, एंड उन यूजर्स में भी देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरीज। देयर माइट बी सर्टेन पीपल हु मे बी ड्यू टू देयर पेज are not going into your segment, or there might be people who are in your segment but buying phones of your competitors, right? So we will do that kind of an analysis initially so that you get that understanding, and हम इसको ईयर ऑन ईयर बनाते हैं सर। एक बार हमारे पास एक फोरकास्ट लेके चलते हैं कि जिस तरह हमारा देश बढ़ रहा है तो किस तरीके से अगले 5 साल देखते हैं सर, क्योंकि एफपीएनडे में 5 साल तक का एनालिसिस इज समथिंग वी शुड बी रियली लुकिंग एट। ठीक है सर, मैं Yes, दो आप ठीक एक्सपर्ट हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे को तो बस मेरा फोन बिकवाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपका फोन बिकेगा भी सर और चलेगा भी सर। तो देखो, हमने 5 साल यहाँ पे लिख लिए हैं, 2024 से लेकर 2028 तक। ठीक है, हाँ, अभी की हम पॉपुलेशन एज्यूम करके चलते हैं, दैट इज 140 करोड़। करोड़। ठीक है, आप 140 लिख दीजिए, सारा ये करोड़ में मान। ठीक है, तो हम बच्चों को भी सिंपल रहेगा, इतना जीरो तो इन्होंने भी कभी नहीं देखा है। तो 140 करोड़ है सर, और हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी 5% एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी पॉपुलेशन अगले 5 साल में क्या होगी, तो सर अगले 5 साल हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी, 5% ईयर ऑन ईयर। ठीक है सर, तो सर हमें, जो हमारा देश है उसमें हर टाइप के लोग हैं, हमारी पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रिच कैटेगरी में आते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर द पॉवर्टी लाइन, एंड उनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। देर आर सम पीपल हु डोंट इवन कैन अफोर्ड फोन्स, राइट? तो हमें पहले उन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके, हमें उसको आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड करना पड़ेगा सर। तो सर इस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये मैं अपना नया फोन लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ये मैं आईफोन से भी महंगा रखना चाहता हूँ। तो ये सर अल्ट्रा रिच कैटेगरी को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप अपना जो एनालिसिस है आप उस हिसाब से कीजिए सर। ठीक है सर, तो सर अगर हम आपकी ये बात मान ले कि ये फोन सिर्फ अल्ट्रा रिच क्लास को जाना चाहेगा, तो सर आई वुड लाइक टू टेल यू, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ 2023, ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज अल्ट्रा रिच। ठीक है सर, और अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन इज 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सर। तो सर अगर मैं आपको बताऊं नंबर्स, अगर मैं 2024 की बात करूं, तो हम इतने एक्टिव यूजर्स को देख रहे हैं
2.8 करोड़। और सर इसमें भी हम एक assumption ले सकते हैं कि I don't expect them to grow very fast, but I will say let us take a realistic assumption of maybe 2%, by which they will increase. Again, for everyone, assumptions has to be taking into the consideration the past data, your understanding, and it can differ. मेरे लिए 2% है, और अगर गौरव जी को भी ये रियलिस्टिक लगती है तो हम 2% लेंगे। बट अगर आपको लगता है कि 2 नहीं 3% होनी चाहिए, दैट इज अगेन योर डिसीजन एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कन्विंस। राइट। सो जैसे मतलब एवरीवन यू नो लाइक गाइस वी डिस्कस ड्यूरिंग दैट गुड एफपीएनए वाला स्लाइड कि आपको एक इंडस्ट्री नॉलेज बिजनेस नॉलेज होना काफी जरूरी है। दैट इज व्हाट अभिनव सर इज ट्राइंग टू यू नो से हियर। आप लोग में से जो शायद मोबाइल फोन मार्केट के एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने काम किया है जिनको यू नो आइडिया होगा, आप लोग शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये assumptions है वो शायद गलत है या आपके माइंड में कुछ और चल रहा होगा या किसी और के ना माइंड में भी अलग चल रहा होगा। बट दैट इज टोटली फाइन। पॉइंट इज हियर वी वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक्टिविटी होती है एंड देन वॉट एवर लाइक इंडस्ट्री या आपके पास जो आपका क्लाइंट या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग होना काफी जरूरी है बिकॉज ये assumptions दे हैव टू बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली हवा में से कुछ भी नंबर लाके पुट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से लाइक ये सबको पता है। सो अगर अभी मैं ये मान लो 14 करोड़ बोल देता तो दैट वुड हैव बीन अ लाफेबल थिंग यू नो ऑन मी। सो वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड काफी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। सो आप ये जरूर ध्यान रखें। Definitely, sir. I think that is the most important thing, understanding of the business and understanding the right, things that we should ask to our stakeholders, because in FP&A, stakeholder communication is very important. Sir, हम आपके टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं सर। तो सर नाउ हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप अल्ट्रा रिच को ही केटर करने वाले हो, आपके पास एक ही सेगमेंट है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कॉम्पिटिटर्स। सर इंडिया में फिलहाल देर इज ओनली वन कॉम्पिटिटर दैट इज केटरिंग टू अल्ट्रा रिच एंड दैट इज आईफोन। आईफोन के अलावा जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर नॉट competing in this segment, ठीक है। सर इन नेक्स्ट 5 years, as per the knowledge, I don't expect any new player to enter in the market, sir. तो सर इन दिस वे अगर मैं बोलूं अभी के लिए 2023 में इस पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 100% ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय आईफोन्स। सर नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सर कि what will be the kind of market you are looking at, sir, क्योंकि हम आईफोन्स को इतनी जल्दी हम, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ वेल एस्टैब्लिश्ड, you already know, sir. Right. तो सर what realistically you feel, आपका क्या प्रोडक्शन प्लान है, हाउ मच यू वांट टू रियली इन्वेस्ट, बिकॉज इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ बिग मार्केटिंग कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे, स्पेंडिंग होगी। तो सर व्हाट काइंड ऑफ मार्केट साइज आउट ऑफ द अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन यू फील यू विल बी एबल टू कैप्चर एंड आर कॉन्फिडेंट। सर आप मेरे को एक नंबर बताइए सर, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सर देर आर 2-3 डिफरेंट मॉडल्स। अभी जैसे कुछ बच्चे कुछ जो लोग हैं शायद हंस रहे होंगे कि हम अल्ट्रा रिच की बात कर रहे हैं और आईफोन्स को भी इस कंपटीशन में ला रहे हैं। सो अल्ट्रा रिच से वी डू नॉट मीन वेरी अल्ट्रा रिच हेयर एंड जो यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज में लॉन्च करना चाहूंगा। तो जो मेरा लोएस्ट सेगमेंट है वो आईफोन को compete करेगा, बट जो उसके ऊपर के 2 सेगमेंट्स होंगे वो थोड़े ज्यादा ही प्रीमियम प्राइस पे होंगे। जैसे जो मैक्सिमम आई थिंक आईफोन अभी 1.5-2 लाख तक का जाता है, बट सो मेरा जो लोएस्ट जी फोन का सेगमेंट रहेगा वो इस प्राइस पॉइंट में रहेगा 1 to 2 lakhs के बीच में, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने जीबी का या कौन से स्पेसिफिकेशन का लेते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ एक ही जीबी का या वेरिएंट रखेंगे, ज्यादा वो नहीं करते। तो आप लोएस्ट सेगमेंट वाला मान लीजिए 1 लाख का फोन है जो आईफोन के साथ डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा। फिर जो मेरा जो मिडिल टीयर और टॉप टीयर फोन है जो मेरा फ्लैगशिप है वो सर 5 lakhs और 10 lakhs का है। तो वहां पे तो अभी कोई कंपटीशन आई डोंट सी एनीबॉडी केटरिंग इन दिस सेगमेंट की जो 10 लाख का फोन बेच रहा है या 5 लाख का बेच रहा है। तो वहां पे आई वांट कि 100% मतलब मेरी मार्केट रहे थ्रू आउट दीज 5 years
एंड फॉर दीज फॉर द माई लोएस्ट सेगमेंट जो आईफोन के साथ कंपटीशन कर रहा है, सो अगर फर्स्ट ईयर में मैं कुछ 20 to 25% भी डेंट कर पाऊँ, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग विन. In fact, I realistically I can maybe tone it down to 15 to 20 as well because it's a very tough thing. And over next 5 years, अगर मैं 30 to 40% के बीच में अपने आप को establish कर लूँ, I think that would be a great win कि iPhone की establishment को beat करके I am able to reach them. Okay, sir. I think thank you for providing me such information. एंड उस हिसाब से मैं इस डेटा को फर्दर क्लासीफाई करना चाहूँगा. सर, अभी तक हमने अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन को मान लिया था कि वो 2% ऑफ द टोटल है. नाउ सिंस यू हैव क्लैरिफाइड मी दैट देयर आर 3 सेगमेंट्स जिसमें आपका एक बेसिक कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरी और हाई कैटेगरी है, तो मैं फर्दर अपनी पॉपुलेशन को उस तरीके से कैटेगराइज करना चाहूँगा. तो अभी की अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, ये जो डेटा था 2% वाला, ये इनके पास, सबके पास आईफोन था सर. ठीक है सर. नाउ लेट अस टेक मल्टीपल सिनेरियोस. ठीक है सर, क्योंकि सिनेरियो लेना बहुत जरूरी है आपके केस में. Right. तो मैं 3 कैटेगरी ले लेता हूँ सर. इनफैक्ट मैं 2 कैटेगरी ले लेता हूँ सर, Basic best case से avoid. मीडियम एंड प्रीमियम सर. ठीक है सर. ये आपके 2 सेगमेंट हो गए सर. सर, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा मैं इक्वल कर देता हूँ. तो सर, आपकी जो बेसिक कैटेगरी है उसमें हम 2 सिनेरियोस ले लेते हैं. बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. ठीक है सर. और मीडियम में भी आपका हम ले लेते हैं ऐसे. तो सर, हमने ये 2 सिनेरियोस लिख दिए सर, बेसिक सेगमेंट और वर्स्ट केस के लिए. सर, बेसिक केस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो 2.8 अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन है सर, आप उसमें सिर्फ 0.25 ही कर पाओगे पहले साल. सेकेंड ईयर सर आप ग्रो करते जाओगे. हर साल आप 10% ग्रो करोगे सर. ठीक है सर. ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो मैंने बता दिया कि सर आप हर साल 10% ग्रो करोगे. वर्स्ट केस सिनेरियो सर, मेरे को लगता है कि हम इस सेगमेंट में सिर्फ 0.110 पे पहुंच पाएंगे एंड वी विल ग्रो ओनली बाय 2% every year. And this is very important to note, friends, कि assumptions is very important, right? And taking right assumptions is only possible if you understand the business. And guys, one more thing कि whenever you take such assumptions, या जब आप forecast अपने present करोगे कभी भी अपने seniors को, अपनी management को या कोई budget या plan, so you have to very clearly articulate कि आपने क्या क्या assumptions लिए, what are the basis, because then they will grill कि आप इस assumption पे कैसे आए. So you have to understand that your management or your leader whosoever is reviewing your numbers, they are an expert into the industry. वो काफी साल से उसी इंडस्ट्री में या उसी पर्टिकुलर कंपनी में, they understand the industry and the company better than you. So if you will go to them with wrong assumptions, so they will never accept it, they will grill you, and in fact you will find yourself in a very tough spot. So always make this as a point, and in fact during our further sessions also, we will keep on reiterating this key. In FP&A you guys have to be very street smart, you have to be very confident of the assumptions or on your calculations, and आपको back of the mind, back of the envelope calculations बिल्कुल literally आपके tips पे होनी चाहिए. Otherwise you will not survive. Day in day out आप CFO के साथ interact कर रहे होंगे. In fact you will be like कि यार CFO पूरा दिन ही हमारे साथ बैठा रहता है. तो एंड पूरा टाइम सिर्फ नंबर्स 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 यही सब पे बात होती है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नंबर्स. तो अभी जैसे अभिनव सर ने यहाँ पे अब सिमिलरली मीडियम या प्रीमियम केस के लिए ऐसी जस्ट अजम्पशंस लिख दी गई है, नंबर्स है ये. सो विल नॉट गो इनटू द एक्यूरेसी ऑफ दीज नंबर्स एज वी आर नॉट डेफिनेटली नॉट मोबाइल फोन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स. ये तो जस्ट एक फन एलिमेंट के लिए वी वर ट्राइंग टू लाइक आप प्रैक्टिकली समझिए.
आप यहाँ पे जो है बेसिकली थॉट प्रोसेस देखिए कि अभिनव सर ने कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछे, एंड बेस्ड अपॉन दैट ही इज ट्राइंग टू अराइव एट लॉजिकल फोरकास्ट या फॉर नंबर्स फॉर मी, कि so that is the main thought process जो आपको समझना है। तो वंस ही हैज डन दैट, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी करके फिर वी विल बी एबल टू अराइव एट कि मेरा रेवेन्यू क्या दिख सकता है। एंड सिमिलरली हम लोग अपने एक्सपेंसेस का भी फोरकास्ट करते हैं। सो प्रैक्टिकली एक तरीका ये है जिसको टॉप डाउन बोलते हैं, कि हमने क्या है कि पूरी मार्केट देखी और उसमें से अपना शेयर निकालने की कोशिश करी। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं अगर पहले से इस मार्केट में स्टैब्लिश्ड होता, जैसे मान लो मैं जी फोन नहीं, अगर हम आईफोन वाले होते और मैं टिम कुक होता, तो मैं देखता कि इंडिया में अच्छा लास्ट ईयर मैंने 1 लाख फोन बेचे। मुझे इस बार उम्मीद है कि मैं अपना मार्केट जो साइज है या अपना मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा ग्रो करूंगा, लेट से बाय 5%। तो इट मीन्स कि मैं इस बार 1 लाख की जगह अपना 1,05,000 सेल कर पाऊंगा। एंड सिमिलरली मैं फिर देखता कि मेरे माइंड में कोई प्राइस इंक्रीमेंट तो नहीं है फॉर इंडियन मार्केट। जैसे लास्ट ईयर मैंने जो नया आईफोन लॉन्च हुआ था, दैट वाज आईफोन 14, वो फॉर एग्जांपल 70,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था। इस बार ये आईफोन 15 आने वाला है, तो क्या आईफोन 15 भी 70,000 से स्टार्ट होगा, या मैं उसका प्राइस जो बेस प्राइस है वो 70 की जगह 80,000 कर दूंगा। तो ऑल दिस थिंग्स विल गो इनटू द फैक्टर, दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट factors which can go. So once we have the numbers, तो ये जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अभिनव सर, इसको हम फॉरकास्टिंग, प्लानिंग या बजटिंग बोलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट पिलर पिलर है एफपीएनडे का, जैसे हमने डिफाइन भी करा काफी, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग। तो आप अभी के लिए ये मान लीजिए कि ये तीनों टर्म्स सेम ही है, दो तीनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और जब हमारा नेक्स्ट सेशन स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे होगा, तो हम फिर एक बारी थोड़ी सी जो भी निटिग्रिटीज है कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, हम उस पर ये टच अपॉन करेंगे। आज अभी इसको ज्यादा हैवी नहीं लेंगे, आप ये समझिए कि तीनों टर्म्स सेम है। तो अभी जो अभिनव सर कर रहे हैं वो सिर्फ सेल्स, जो आपका एक लाइन आइटम है पीएनएल के ऊपर या रेवेन्यू, उसके लिए सर अभी फॉरकास्टिंग कर रहे हैं। और सर अभी फॉरकास्ट करके अगले 5 साल का एक नंबर यहाँ पे हमें देंगे। वंस वी हैव दैट नंबर, तो ये तो हो गया, ये आपका फोरकास्टेड नंबर है। नहीं सर, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि हम एक बेसिक, एक न्यू एंट्री प्लेयर के लिए किस तरीके से सोच सकते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ अ थिंकिंग, राइट? An important part in FP&A is to understand the business, understand what kind of questions needs to be asked to your stakeholders, to your seniors, and how can you really model the problem. सर, इसमें हमारा बस एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। वी वांटेड टू फोरकास्ट what is the best revenue that I can make in next 5 years. एंड उसके लिए सर हमने सोच लगाई कि लेट अस स्टार्ट विद मार्केट साइज। मार्केट साइज से हम कैटेगरी वाइज जाए, पॉपुलेशन वाइज जाए, एंड अल्टीमेटली हमने यहाँ पे 2 सिनेरियोज भी बना दिए सर, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। एंड हर एक सिनेरियो के पीछे एक अजम्पशन है, एंड अजम्पशन इज वेरी वेल थॉट थ्रू कि मेरा फोन 5% ग्रो होगा, 1% ग्रो होगा, व्हाट इज माई बेस्ट वर्स्ट केस। एंड सर अगर आप अब आप देखोगे, मैंने यहाँ सर यहाँ पे क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर ली है कि मेरी इतनी क्वांटिटी बिकेगी सर हर साल में। बेस्ट केस सिनेरियो में मेरी इतनी क्वांटिटी बिकेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरी इतनी क्वांटिटी बिकेगी सर। अगर मेरे को आपको सेल्स का नंबर देना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मेरे को ये बताया था कि बेसिक का प्राइस 1 लाख होगा, मीडियम का प्राइस 5 लाख होगा सर, तो मैं आपके लिए ये निकाल सकता हूँ सर। तो सर अगर मेरे को बेस्ट केस का निकालना है प्राइस बेसिक का, तो सर सर मैं यहाँ पे पहले बेसिक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन मैं मीडियम के प्राइस को। तो सर मैंने अभी बेस्ट केस सिनेरियो के लिए मैं सेल्स के नंबर निकाल रहा हूँ सर। तो ये मेरा, मैंने बेस्ट केस का प्राइस बेसिक का ले लिया है सर, अब मैंने मीडियम का ले लिया। और सर जब मैं इसको ऐड कर लूँगा सर, तो मेरे पास आपके लिए एक सेल्स नंबर होगा। ठीक है सर? मेरे को लगता है कि हमारी कंपनी 2024 में इतना सेल्स टच कर सकता है बेस्ट केस सिनेरियो में सर। अगर मैं इसको सर ड्रैग कर लूँगा, तो आपके पास अगले 4 साल का डेटा आ जाएगा, राइट? तो इससे आपको एक क्लैरिटी दिख रही होगी सर, किस तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है इन दी बेस्ट केस सिनेरियो।
तो सर हमने आपके लिए अगले 5 साल का रेवेन्यू फोरकास्ट करा है और फोरकास्ट करके हमें ये पिक्चर दिख रही है। तो सर सिमिलरली हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी आपके लिए एक नंबर दे सकते हैं सर। एंड ब्यूटी अबाउट दिस मॉडल इज सर आपके लिए बहुत आसान है सर। आप कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी एलिमेंट में आप कोई भी अजम्पशन चेंज करोगे तो उस तरीके से नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं सर। राइट। तो सर इस तरीके से हम ये एक बेसिक एग्जांपल था एंड आई थिंक फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स आई थिंक this is just the starting and in coming sessions it will go directly into the complexities and I think but this can be a good base for you to understand where we will eventually go, and this kind of thinking is eventually expected from any FP&A team member on how they can do forward looking analysis. इसमें हम पीछे भी जाते हैं बट फॉरवर्ड लुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक चीज की वैल्यू अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक का निकालना होता है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से। तो आई होप ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल सर आपके लिए काफी रेलेवेंट रहा होगा सर। नहीं नहीं, राइट सर। तो बिफोर यू केम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल, आई वाज टेलिंग स्टूडेंट्स दिस ओनली कि एफपीएनडे एक लौता ऐसा फंक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, एंड हेंस जो पैसा है वो इसी फील्ड में है। बिकॉज बैक जो हिस्टोरिकल हो चुका, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो पीछे बीत चुका उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अगर आप मान लो कोविड आया, आपका क्वार्टर पिट गया, आपकी कंपनी के बिल्कुल लॉसेस में जा, अरे सर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दैट इज हिस्ट्री, दैट इज पास्ट। सम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपके लिए आके कर क्या रहा है, आपको सिर्फ एक स्नैपशॉट ही तो दे रहा है कि हाँ भाई पिछले क्वार्टर में आपने इतना लॉस करा। अरे वो तो मुझे वैसे ही पता है, मेरे को कोई उससे वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। ऑडिटर जो ये अर्चित सर उछल उछल के आते रहते हैं आपके पास, ये क्या कर रहे हैं? जो आपने उस टाइम लॉस रिपोर्ट करा है वो बता रहे कि आपने सही रिपोर्ट करा है, नहीं करा। अरे वो भी तो सर एक बैक एंड टास्क है। इसलिए अर्चित सर हमारे आगे पीछे पूरा टाइम घूमते रहते हैं, क्योंकि पैसा तो सर हमारे पास ही है। तो तो आपका जो ऑडिट है, आपकी जो टैक्सेशन है, आपकी जो अकाउंटिंग है, इससे सर कुछ नहीं होता। ये सब बिल्कुल ही मतलब आप जब कल को, आप में से अभी शायद काफी लोग शायद बिजनेस करने का भी सोचते होंगे, जब आप लिटरली अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपने दिल से खुद यही आवाज निकालेंगे कि सर इनको मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ। इनफैक्ट आपने नोटिस भी करा होगा, ये सुना होगा काफी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्योंकि जो हमारे आसपास जितने भी प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जनरली वो लोग अकाउंटिंग ऑडिटिंग मतलब अकाउंटिंग मतलब वही बुक कीपिंग ऑडिटिंग या टैक्सेशन की ही प्रैक्टिस या सर्विसेज या कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। इसलिए वो रोते रहते हैं कि क्लाइंट हमारा पैसा नहीं देता। अरे भाई, किसी क्लाइंट का पैसा देने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है तू कर क्या रहा है। तू तो बस एक लॉ के हिसाब से, क्योंकि मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने वो मजबूरी थोप रखी है कि मुझे इस हिसाब से अपने बुक्स प्रेजेंट करनी है, मुझे इस हिसाब से अपनी टैक्स फाइल करना है, डेट तक करना है, तो मेरे को उनको पैसा देना पड़ रहा है जबरदस्ती। नहीं तो लिटरली कोई दिल से दे ही नहीं भाई इन लोग को पैसा। ऑन दी अदर हैंड अभिनव सर जैसे ज्ञानी है हमारे पास, जो कि मुझे बता रहे हैं कि अगले 5 साल में मेरा क्या होने वाला है या किस तरीके से मेरे को सोचना चाहिए। अगर मेरे को मान लो कि ये जो अभी अभिनव सर ने निकाल के दिया है 75,000, अब मेरे को यहाँ पे ये सोचना है कि अगर मैं लिटरली इतना नंबर अचीव करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब जैसे सर ने मुझे बोला कि 100% मार्केट जो अभी आईफोन से कैप्चर्ड है, और मेरे को बेस्ट केस में मैं 25% तक कैप्चर कर सकता हूँ। तो सर जी मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा कि अब मेरे को अगर 25% मार्केट तोड़नी है आईफोन की, तो मैं कितना पैसा खर्च करूं कि मैं 25% मार्केट तोड़ पाऊंगा। तो सर मुझे वो इनसाइट्स ला के देंगे, वो मुझे मतलब हेल्प कर रहे हैं वो एक डिसीजन लेने में। वो चाहे मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे, बट वो मुझे उस आंसर के काफी करीब लाके पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एन एफपीएनए डज। तो जो अभी अभिनव सर बोल रहे थे फॉरवर्ड लुकिंग के बारे में, ये काफी क्रिटिकल है फ्रेंड्स, एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि take this master class and take FP&A field in this spirit only, that you literally are the strategic decision makers of a company. Whatever analysis that you will do after learning from this master class, that will definitely help company in taking its futuristic decisions. तो सर ने जो अभी हमें ये दिखाया है, ये एक फोरकास्टिंग हो गया जो कि हमारा फर्स्ट पिलर था। फिर हमने जो सेकंड पिलर की बात करी थी, अभी के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पे अब ये कोई वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है। जो अभी सर ने दिखाया था सब भूल जाओ, ये हमारा एक फाइनल नंबर आ गया है, जिसको मैं फोरकास्ट या अपना बजट बोलता हूँ, और इसे मैं फ्रीज कर रहा हूँ। मैं सारी कैलकुलेशन एक बारी के लिए हटा रहा हूँ, इसको बेस्ट केस की जगह हम बोल देंगे ये मेरा प्लान है। अब इसके बाद सर आते हैं कि जो हमारा सेकंड पिलर था जो कि हमने टच किया था। अभी ना सर आप बताइए पी क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
हम बोलते हैं पी से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो उसका क्या मतलब होता है सर? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए। तो आपकी परफॉर्मेंस किससे मेजर करी जाएगी? जो आपने टारगेट अपने लिए सोचा था। अब हम ये मानते हैं कि अभी हम 23 में बैठे हैं, बट अब हम ये मानते हैं कि हम 24 के एंड पे बैठे हैं और मेरे जो एक्चुअल नंबर है वो ये आए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सर ने टारगेट दिया था 75,000 का, बट सर इतने अच्छे और इतना बढ़िया एफपीएनडे सर्विसेज देते हैं। आई एम श्योर 75,000 सर बोल रहे हैं, इससे ज्यादा ही मेरा ये टारगेट अचीव करा देंगे। तो मान लेते हैं कि इन्होंने मेरी 80,000 की सेल करा दी। आई थिंक ये मैंने 8 लाख लिख दिए। सर बिल्कुल 8 लाख कराइए सेल नहीं आप। नहीं, इतनी नहीं करा। तो ये 80,000 की एक्चुअल अब सेल हो गई। तो अब जब मैं इसको एक्चुअली मेजर कर रहा हूँ कि ये मैंने जो एक्चुअल में अचीव करा वर्सेस व्हाट आई इनिशियली प्लान्ड आउट, सो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या वेरिएंस एनालिसिस भी। अब यहाँ पे जो मेरा वेरिएंस है दैट इज 5,000 इन माय फेवर, मैंने 5,000 ओवर अचीव करा। अब सर ओवर अचीव करे तो ये नहीं कि हम खुशी मनाएंगे या भाई साहब एफपीएनडे डिपार्टमेंट लड्डू नहीं बांटता। एफपीएनडे डिपार्टमेंट काफी समझदार है, वो इसको पहले रीजन समझेंगे इस बारे में कि अगर आपने 5,000 ओवर अचीव करा है तो ऐसे क्या कारण थे। फॉर एग्जाम्पल कि यूनिट शायद इतनी ही बिकी होगी, 25% मतलब मैं कैप्चर कर चुका हूँ, बट क्या पता जो मेरा ये फोन की प्राइसेस है वो मैंने एक्चुअल में ज्यादा पे बेचा हो, या हो सकता है कि मेरे प्राइसेस नीचे हो और मैं यूनिट ज्यादा बेच पाया हूं, मैं 25% की जगह 30% मार्केट कैप्चर करके आया हूँ। तो ये सब जो है कि जो मैंने फॉरकास्टिंग करी थी, अब मैं नेक्स्ट टाइम अब वापस से जब इस फॉरकास्ट को फिर से करूंगा, या मान लो फिर से अभिनव सर के पास एक नया प्लेयर आता है, कोई बोलता है मुझे सर ए फोन लॉन्च करना है, मेरी हेल्प करो। तो सर को भी अपना एक आइडिया लगेगा बेस्ड अपॉन जो अभी वो मेरा यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे कि मैंने ओवर अचीव या अंडर अचीव क्यों करा, या अगर मैं अपने टारगेट की क्लोज भी था, तो ही विल लुक इनटू इट। वो प्रॉपर पूरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे। जैसे पीटीएम होती थी ना आप लोग की स्कूल में, आपके पेरेंट्स को बुला के टीचर पूरी अच्छे से आपके एनालिसिस करवाते थे पीटीएम में, तो सिमिलरली एक एफपीएनडे डिपार्टमेंट वालों को भी यही काम होता है। जैसे ही वो नंबर एक्चुअल हो जाते हैं, वो जो आपका फोरकास्टेड पीरियड है वो एक्चुअलाइज हो जाता है, वो लिटरली खत्म हो जाता है और उसके नंबर्स फाइनलाइज हो जाते हैं, तो अभिनव सर यही काम करेंगे कि दे ही विल एक्चुअली गो इनटू द वेरिएंस एनालिसिस। नहीं, आई थिंक एक बेसिक चीज आपने ऐड करी, बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पर अगर आपने सेल्स ओवर अचीव भी करा है तो आपको खुशी नहीं मनानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि हमें ड्राइवर समझने ज़रूरी है कि क्या रीज़न था ओवर अचीव करने का। तो इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स को कंसिडर करा, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हमें इम्पॉर्टेंट है देखना कि क्या वो प्राइस और क्वांटिटी मेंटेन्ड है जिस हमने इनिशियली प्लान करा था, या क्वांटिटी बढ़ गई है, प्राइस सेम रहा, या प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी घटी। क्योंकि उससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, राइट? अगर आप सोचो आपने क्वांटिटी ही कम सेल करा प्राइस बढ़ा के, राइट? इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तरीका तो ये देख सकते हो कि देर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड पेइंग मोर फॉर योर फोन, राइट? बट थोड़ा नेगेटिवली भी देखा जा सकता है कि आपकी क्वांटिटी बिकना तो कम स्टार्ट हो रही है ना। तो अगेन एफपीएनडी डिपार्टमेंट इज वेरी स्मार्ट, पोस्टमार्टम करता है सर, बिल्कुल पीटीएम ही वर्ड होता है। और एक्चुअल का जब वो वेरिएंस करता है प्लान के साथ, तो फिर वो अगले वाले सालों का भी सोचता है कि नाउ अगर आपने एक रीजन के कारण क्वांटिटी कम अचीव करा है, तो सर इसका इम्पैक्ट बाकी वाले 4 सालों में क्या होगा, क्योंकि आपने एक साल में जो स्ट्रैटेजी बना ली है वो कैरी फॉरवर्ड भी तो करोगे ना सर। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज एफपीएनडे। and I think Gaurav sir has touched, very beautifully on how to do a performance management. Then that is what P stands for, right? And coming to the last part, that is the A part, right? That is what Gaurav has told. Analysis, sir. आप बताइए सर, आप किस तरीके से एनालिसिस करना चाहोगे इस डेटा का सर? तो अभिनव सर, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट ऑन द एनालिसिस, एक छोटा सा पॉइंट जो आप बोल रहे थे उसमें मैं ऐड करूंगा। सर ने जैसे बोला था अभी कि जो अब मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम करूंगा और मुझे मान लो पता चला कि मैं 5 लाख की जगह अपना फोन 6 लाख पे बेच पाया था, और मेरा जो मोटा मोटा क्वांटिटी है वो मान लेते हैं उतना ही है, जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, कैलकुलेशंस कुड बी वॉट एवर दे आर। तो आप सर ये सोचिए कि इस बेसिस पे अगर मुझे पता चला मैं अपना फोन 6 लाख पे बेच सकता हूँ, तो सर मैं अपने जो 25 से लेकर 28 के नंबर्स है इन्हें भी रिवाइज करूंगा। और जो मेरे को यहाँ पे ये रेवेन्यू दिख रहा है अभी 80,000 का, और ये 97 पे जाके क्लोज हो रहा है,
ये रफली मान लेते, मतलब ये भी चेंज होगा, ये 80 का लेट से 81 82 इंप्रूव भी होगा, एंड सिमिलरली आगे के भी इंप्रूव हो गए। तो सर आप ये सोचिए कि अब आप इससे कैसे कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कल को एक प्लांट डालना चाहते हो, मतलब आप एक कैपेक्स करना चाहते हो, या आप सोच रहे हो कि लोन उठाया जाए, तो सर आप इन्हीं प्रोजेक्शंस के बेसिस पे ही तो करोगे। तो इसलिए टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना काफी क्रिटिकल है, एंड अगेन इफ यू आर ओवर अचीविंग ऑल्सो, देन ऑल्सो यू नीड टू लुक इन टू दैट, बिकॉज बेस्ड अपॉन दैट थिंग आपके जो फ्यूचर डिसीजंस है वो चेंज होंगे। इसलिए जो हम ये टर्म यूज कर रहे हैं सर, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, आप लोग सोच रहे होंगे सर बोलने में तो कितना आसान है, आपने ऐसे बोल दिया, होगा कैसे? तो जो अभी ये एग्जाम्पल देके यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है, मे बी कैपेक्स रिलेटेड, या आपको डेट उठाना है, या आपको इक्विटी रेज करना है, कुछ भी हो सकता है, या आपको कोई एक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बेस्ड अपॉन दिस अब आप वो एक प्लान देख रहे थे। जैसे कई बार होता है कि मेरे को अभी एक घर लेना है या गाड़ी लेनी है, अभी मेरी सैलरी मान लो 50,000 है, तो मैं एक ऑल्टो के बारे में सोचूंगा क्योंकि वही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बट अगर एकदम से मेरे पास कल को एक बोनस आ गया, मेरे को एक नई कंपनी ने ऑफर दे दिया जिसने मेरी सैलरी डबल कर दी, तो सर मैं ऑल्टो गाड़ी से दूसरी गाड़ी सोचूंगा ना। तो ये मेरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पूरी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द इनसाइट्स दैट आई एम एक्चुअली जनरेटिंग आउट ऑफ दिस। नाउ सर, कमिंग टू एनालिसिस, जिसके लिए आप मुझे बोलना चाह मतलब इनवाइट किया था कि मैं बोलूँ, तो एनालिसिस पे सर यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। तो सोचो बच्चों, कौन मतलब स्टूडेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, वन कुड बी कि आपका जो बेसिक मॉडल और मीडियम मॉडल है, इसका क्या मिक्स है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे था कि 25% और ये 10, आई एम अज्यूमिंग एक बारी के लिए इसको क्वांटिटी मान लेते हैं, दिस इज 25 एंड दिस इज 10, तो आप टोटल साल में 35 फोन्स बेच रहे हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग। 25 आपके बेसिक है, 10 आपके मीडियम है, एंड आपका ये हो गया टोटल 35। और इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो आपका बेसिक है वो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट कराता है, और आपका जो ये प्रीमियम है ये आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट कराता है। तो अगर हम मैं क्वांटिटी में मिक्स की बात करूं, तो 25 डिवाइड बाई 30, आपका 70% लगभग है ये बेसिक फोन, एंड जो आपका रफली 30% है वो आपका है मीडियम फोन। अब आप सर ये सोचिए कि अगर ये मेरा मिक्स मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और नीचे की साइड लाऊं, मतलब मेरा ये 70-30 से ये 60-40 हो जाए फॉर एग्जांपल रेशियो, तो मेरे लिए ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और वो 10 रुपीज का प्रॉफिट ही दे रहा है। तो इस तरीके के एनालिसिस की मेरा प्रोडक्ट मिक्स क्या है, या मेरी जोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसे, फॉर एग्जांपल आउटसाइड इंडिया में कितने बेच पा रहा हूँ, इंडिया में कहाँ कितने बेच पा रहा हूँ, या मान लो इंडिया में भी कौन सी स्टेट्स में कितना बेच पा रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर 10 लाख का फोन है, तो होपफुली गांव वाले लोग शायद इसको ना लेना चाहे, मेजरली ये शायद सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बिकेगा। तो आई कुड हैव समथिंग एन एनालिसिस डन फॉर दैट ऑल्सो, कि जो हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इसके अलावा आप लोग पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर को भी आप चाहे इंक्लूड कर लीजिए, तो जो ये 7-8 जो टीयर 1 बिल्कुल टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ से मोस्ट लाइकली मेरी ज्यादा सेल्स आ रही होगी। तो हो सकता है कि मैं अगर अपनी जो एफर्ट्स है, जो मैं अपनी मार्केटिंग कॉस्ट डाल रहा हूँ, अगर मैं इन्हीं सिटीज में सिर्फ स्ट्रैटेजिकली पुश करूँ, तो जो मेरी सेल्स है वो बढ़ जाए। और जो ये मेरा प्रीमियम फोन है जो 5-5 लाख में लोग खरीद रहे हैं, या अभी तो ये 6 लाख का हो गया था, मतलब जो हमने अभी रिवाइज एस्टिमेट करा था, तो तो इसमें मेरे को सिर्फ प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो तो these are the sort of strategies that I can make upon such sort of analysis। एंड ये जो एनालिसिस है सर, दीज आर ऑपरेशनल एनालिसिस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट मिक्स हो गया, या आपका प्राइस मिक्स या ज्योग्राफी मिक्स हो गया, तो ये तो हो गए ऑपरेशनल एनालिसिस। बट हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। आप सब ने, आई एम अज्यूमिंग ज्यादातर यहाँ पे फाइनेंस वाले ही बच्चे होंगे, तो आप लोग ने एटलीस्ट बीकॉम तो करी होगी, इफ नॉट सी, और अपने एमबीए में भी ये फाइनेंशियल रेशियोज का एक चैप्टर होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल रेशियोज है वो सारी सर एनालिसिस भी तो है, वो आपके जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बेसिक, दैट इज योर बैलेंस शीट, योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर कैश फ्लो। उन्हीं में जो मैट्रिक्स आते हैं, उन्हीं में जो लाइन आइटम्स आती है, उसी पे जो हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा आपका रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, डीएसओ, डीपीओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड व्हाट नॉट, लाइक एंडलेस ये रेशियोज है या एंडलेस पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप
इस तरीके का अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। पॉइंट इज यू हैव टू बी शार्प इनफ, आपका एक्यूमेन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैट्रिक आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको आप एनालिसिस करके एक बढ़िया सा इंसाइट, एक्शनेबल इंसाइट अपने मैनेजमेंट के लिए दे सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या जो मतलब उनकी फ्यूचर ग्रोथ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। या अगर मान लो आप नेगेटिव डाउन स्लोप में आपकी कंपनी, तो उसको आप मतलब स्टॉप करवा पाए। सो बेसिकली अभिनव सर, दिस इज I think I totally can agree and understand my analysis. totally agreed, and I think you have very well explained. I think key performance indicators भी सर एक वर्ड होता है एनालिसिस के लिए, क्वांटिटी मिक्स, कस्टमर मिक्स, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ एनालाइजिंग द डेटा सर, एंड आई थिंक अभी हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं सर। एफपीएनडीए की दुनिया इतनी बड़ी है सर, इतनी टाइप ऑफ बिजनेसेस है, इतनी टाइप ऑफ कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है। इवन अगर आपको यही मार्केटिंग कैंपेन इंडिया के बाहर लॉन्च करना होता सर, तो देन डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। तो सर बहुत डाइवर्स है ये एरिया, एंड आई थिंक इन आवर अपकमिंग सेशंस वी वुड लाइक टू टच बेस these concepts in detail, and we can make it relevant for all, like how and what kind of deliverables are expected from FP&A team, and certainly emphasize on these three elements जो I think सर ने बार बार repeatedly बोला है। बट अगेन बिफोर वी क्लोज द क्लास सारे मिलकर एक बारी FP&A को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, जिससे कोई भी ना बोले सर। तो एफ सर, एफ मतलब सर फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये हम नहीं भूलने वाले, एफ का मतलब, पी का मतलब क्या होता है सर? बच्चों, एफ से कोई एफ वर्ड यूज नहीं करना है प्लीज, ठीक है? ना हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं। पी से सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। एंड सर ए से सर? एडवांस एनालिटिक्स या एडिशनल एनालिसिस, आप जैसा भी बोलना चाहे, दोनों मतलब एक ही चीज है, इससे काफी वाइड टर्म है सर। राइट सर। तो सर अब हम ये सेशन आपकी अनुमति से क्लोज करना चाहेंगे सर। हम आपको गौरव जॉब से गौरव मलिक वापस लाना चाहेंगे। आई थिंक दिस इज अ गुड बिगिनिंग, एंड आई होप दैट इन नेक्स्ट सेशंस वी कैन कंटिन्यू विद दिस स्पिरिट, and maybe we are open with the feedback you guys might have. Please use the discussion forum and reach out to us in case you have any questions, suggestions. Would be more than happy to help. Me and Gaurav sir are both available, and feel free to reach out to us. राइट। तो स्टूडेंट्स, लाइक आज यहीं पे अब खत्म करते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने काफी डिटेल में प्रैक्टिकली भी वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट एफपीएनडे इज, व्हाट आर द डिफरेंट स्किल सेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट डिलीवरेबल्स, किस तरीके का आपका एक्यूमेन होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ट्राइड टू कवर, एंड आई होप जिस एनर्जी और जिस एंथुजियाज्म से आज हमने अपना ये सेशन या अपने नई एफपीएनडे की मास्टर क्लास स्टार्ट करी है, I want to see the same enthusiasm throughout the master class। एंड जो भी आपको हम एक्टिविटीज या जो भी आपको हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज अपने क्लास में कवर करेंगे, आई एंड अभिनव सर वी हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप इसे सीरियसली ले, बिकॉज अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है आपका इन मास्टर क्लास को अटेंड करने का। बिकॉज आवर पर्पस इज टू फाइनेंशियली आपको मतलब उस तरीके से एक तो लिटरेट करना, अवेयर करना, सो डैट आप भी थोड़ा सा पैसा छाप सको, अनलाइक अर्चित सर। ऑडिट में कुछ नहीं रचा। तो स्टूडेंट्स, सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जैसा हमने डिस्कस करा था, नेक्स्ट क्लास वुड बी, हम अपने अब यही जो पिलर्स है इस पे स्टार्ट कर देंगे, एंड मैं और अभिनव सर बीच बीच में ऐसे आपको मिलके भी इंडिविजुअली भी विल ट्राई टू लाइक सॉर्ट ऑफ वॉक यू थ्रू द एंटायर एफपीएनडे जर्नी, प्रैक्टिकली सब चीजें कैसे होती है। काफी सारे रियल लाइफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के आप लोग को एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। So that's it from our side. Thank you so much, everybody.